Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. My name is Mahi. In today's video, I am going to provide the BEGC 103 assignment. As always, I have prepared all the answer in simple English, so they will be easy for you to understand as well as write in your assignment. So without wasting any time, let's get started. Let's begin with section A. In this section, you have write 4 short note answer and each answer should be around 200 words. I have kept all the answers simple, well structured and according to the IGNOU pattern. Okay, our first question is psychological novels. In this answer, I have explained what a psychological novel is and what makes it different from an ordinary novel. Also include its important characteristics in simple language so that the concept becomes clear while you are preparing your assignment. Now let's move to the second question. Second question is about R.K. Narayan's Malgudi. Here I have explained why Malgudi is considered one of the most famous fictional town in Indian English literature and why it plays such an important role in Narayan's novel. The third question is the plot of The Other Woman. In this answer, I have written the story in a simple and proper sequence so that it becomes easy to understand and remember. Okay, now let's move to our last question of section A. The last question in section A is the theme of the binding wine. Answer, I have explained the central theme of the novel in simple words without making it unnecessarily lengthy. This will help you understand the novel better while completing your assignment. Before moving to section B, here's a small suggestion. While writing your assignment, try to maintain neat handwriting and proper paragraph spacing. Section B contains 4 descriptive questions. Each answer should be around 350 words. So you will need to explain the topic in more detail. In this answer, focus on the main idea, explain it with proper points and maintain a good structure with an introduction, body and conclusion. ये सारे काफी लॉन्ग आंसर है, इस वजह से आपको थोड़ा टाइम तो लग सकता है लिखने में, लेकिन आप लिखना शुरू कर देना क्योंकि जो आपका असाइनमेंट का लास्ट सबमिशन डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो आप 31 अक्टूबर से पहले पहले आप इसको सबमिट कर देना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो इजी हो जाएगा। बाकी मैंने सारे जो भी टॉपिक्स है उनको मैंने सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो आपको
किसी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आती है या आपको मुझसे असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको इग्नू से रिलेटेड कुछ पूछना हो कि इग्नू में जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है, या एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश ओडिसी को। तो अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। इसमें अराउंड 600 वर्ड्स है जो आपको लिखने हैं आंसर में। और मैंने जैसा लिखा है आप उसको अगर एज इट इज भी लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो जहां मैंने बोल्ड करा है वहां आपको बोल्ड करना है। जब मैं इसका लेक्चर बनाऊंगी, क्लासेस जब मैं यूट्यूब पे छोड़ूंगी इसकी वीडियोस, तो आप जाके प्लीज देख लेना उसे। फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपकी ये असाइनमेंट। क्योंकि ये जो असाइनमेंट है मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। जिस दिन मैं क्लास इसकी अपलोड करूंगी ना यूट्यूब पे, तब मैं आपको कम्प्लीटली पूरा जो BGC 103 का जो जितने ब्लॉक्स है सारे ब्लॉक्स को मैं कवर कर दूंगी। तो आप आके उस वीडियो को जरूर देखना। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और जो 5 क्वेश्चंस है ना उनके आंसर तो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, आपको लिखने में काफी टाइम लग सकता है। तो आप प्लीज अभी से लिखना शुरू कर देना। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप अगर असाइनमेंट टाइम में सबमिट कराते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपको उससे। पहली बात तो जो आपके मार्क्स है ना वो आ जाते हैं एग्जाम से पहले पहले, या फिर एग्जाम्स के दौरान ही आ जाते हैं आपके मार्क्स। अगर आप काफी टाइम बाद जाके सबमिट कराओगे तो आपके मार्क्स आने में कुछ डिले हो सकते हैं। ऊपर से कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाता है इग्नू में। मेरे साथ एक दफा हो चुका है। मैंने फर्स्ट जब ईयर मेरा चल रहा था इग्नू में, तो मैंने सारे असाइनमेंट मैंने एक ही बार जमा करा दिए थे। मतलब मेरा जो 8 असाइनमेंट था मैंने एक ही साथ जाके जमा करवाया था। तो अब सबमिट कराने के बाद ना हुआ क्या कि मेरे ना सबके मार्क्स आ गए, मेरे 2 असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए थे। मैंने काफी वेट किया, मुझे लगा वेट करने से शायद असाइनमेंट के मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन काफी वेट करने के बाद भी मेरे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए। तो फिर मुझे काफी वो वेird लगा कि मार्क्स क्यों नहीं आए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको पता करूं। तो फिर मैं अपने मेरी जो स्टडीज मेरी जो सेंटर है कॉलेज में वहां पे गई। मैंने वहां जाके जो मेरे पास जो रिसीट थी, जो मैंने पहले लिया था जो रिसीट, जब मैंने असाइनमेंट सबमिट कराई थी वो रिसीट ले जाके मैंने दिखाई और मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मतलब मेरे मार्क्स नहीं अभी तक अपडेट हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आगे आपका मार्क्स देखते हैं, हो जाएगा 15-20 दिन में। और 15-20 दिन में हो गया था मेरा मार्क्स अपडेट। असाइनमेंट में बस यही प्रॉब्लम आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरी बात, अगर आप असाइनमेंट को पढ़ना शुरू कर देते हो, अगर आप पढ़ लेते हो थोड़ा, तो आपको जब एग्जाम में जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, और आप अगर लेक्चर भी अटेंड कर लोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा एग्जाम देना। और मैं एग्जाम्स के लिए एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप ना प्रैक्टिस बहुत करो लिखने की, क्योंकि जो 3 घंटे का पेपर होता है ना उसमें लिखना ही होता है बस। क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब आंसर लिखने होते हैं।
तो बस आप लिखने की प्रैक्टिस बहुत करना। सो ये हमारा सारा असाइनमेंट है। So that's all for today's video. I hope this assignment explanation was helpful for you. If you found this video useful, please like the video, subscribe to my channel, and share with your friends. Your support motivates me to create more helpful content for you. If you have any doubts or suggestions, feel free to write them in comment section. मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं कमेंट में आप मुझे बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो। एंड yeah, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Happy learning. Bye bye.